Ladies and gentlemen, good day and welcome to Shakti Pumps India Limited Q4 and FY22 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Rohit Anand from Ernst & Young LLP. Thank you, and over to you, Mr. Anand. Thank you, Neerav. Good afternoon, everyone. On behalf of Shakti Pumps India Limited, I welcome all of you to the company's Q4 and FY22 earnings conference call. I am Rohit Anand from Ernst & Young IR practice, and we manage investor relations for Shakti Pumps India. You would have already received the Q4 and FY22 results and investor presentation, which is also available in our filings with the BSE and NSE. To discuss the company's business performance during the year and outlook, we have with us today Mr. Dinesh Patidar, Managing Director, Mr. Ramesh Patidar, Executive Director Exports, Mr. Dinesh Patel, Chief Financial Officer, and Mr. Ravi Patidar, CS and Compliance Officer. Before we proceed with the call, a disclaimer. Please do note that anything said on this call during the course of the interaction and in our collateral, which reflects the outlook towards the future and which should be construed as a certain forward-looking statement, must be viewed in conjunction with the risks the company faces and may not be updated from time to time. More details are provided at the end of the investor presentation and other filings that can be found on our website www.shaktipumps.com. Should you have any queries or you need any further information at the end of this call, you can please reach out to us at the email addresses mentioned in the company's collateral. With this, I would now hand over the call to Mr. Dinesh Patidar. Over to you, sir. Thank you, Rohit. दोस्तों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। शक्ति पंप्स की इंडिया लिमिटेड की Q4 के रिजल्ट के कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आप में से अधिकांश के साथ मेरी ये पहली बातचीत हो रही है। इससे पहले कि हम अपने रिजल्ट की चर्चा आपसे करें, मैं पहले अपनी कंपनी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। शक्ति पंप्स 1982 में स्टार्ट हुई एक MSME कंपनी थी जो पंप्स बनाने में काम कर रही थी। उसके बाद हमने थोड़ा गवर्नमेंट सप्लाई स्टार्ट किया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। 95 में हम एक पब्लिक इशू लेके आए और पब्लिक इशू लाने के बाद हमने अपना ध्यान एक्सपोर्ट बिजनेस की तरफ लगाया और स्टेनलेस स्टील पंप्स को डेवलप करने में लगाया, जो एनर्जी एफिशिएंट पंप्स थे। और उनको इंडिया में हम पहली एक ऐसी कंपनी थे जो स्टील के पंप बनाने वाली कंपनी थी और एनर्जी एफिशिएंट में 5 स्टार रेटेड कंपनी का सर्टिफिकेट भी हमें ही मिला था। हम स्टेनलेस स्टील में सभी तरह के पंप्स बनाने में अपनी टीम R&D टीम का बड़ा उसमें योगदान रहा और उसी के चलते हम 2013 में सोलर के लिए अमिताभ बच्चन को लेके आए कंपनी में और अमिताभ बच्चन ने हमारी ब्रांडिंग स्टार्ट की। उसके बाद हमको सोलर मार्केट में हमने फोकस किया क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट पंप्स का फायदा हमको सोलर मार्केट में ही मिला। हमने ये सोचा कि इसमें सबसे क्रिटिकल आइटम क्या है, तो उसमें सबसे क्रिटिकल आइटम हमको लगी कि जो अभी तक अपने देश में इंपोर्ट हो रही थी VFD, जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वो अभी तक इंपोर्ट होके आ रहा था। हमने सोचा कि अब ये इंडिया में सोलर का मार्केट डेवलप हो रहा है तो इसको डेवलप करना चाहिए और आज से 6 साल पहले हमने जो सपना देखा था उसमें हमको महारत हासिल हुई और हमने मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी डेवलप की और आज हमारे पास 2 लाख VFD सालाना बनाने की कैपेसिटी है और 5 लाख पंप्स एंड मोटर्स हम बनाने की हमारी कैपेसिटी है। और आज की तारीख में मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज जो हमारे देश की सबसे बड़ी स्कीम जो तकरीबन
भारत सरकार ने 40 लाख पंप सोलर में लगाने का तय किया है, जो 1 लाख करोड़ की स्कीम है। उसमें जो पायलट पंप्स स्टार्ट हुए हैं पिछले 2 सालों में, उसमें हमने देखा है कि हमने बहुत अच्छी योगदान दिया है। और कुसुम स्कीम में मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा हिस्सेदारी % है। जो हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लोग अभी 30 से 35% कैपेसिटी पे अपने प्लांट को रन कर रहे हैं, क्योंकि सोलर में धीरे धीरे अब मार्केट भी डेवलप हो रहा है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी अच्छी आ रही है और फार्मर्स भी रेडी हो रहा है। हमने एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला 1200 मॉडल्स की तैयार की है कंपनी में, और सारे ही पंप हमारे 30 से 40% तक जो है एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। अभी हम हिंदुस्तान की तरफ भी अपने आप को देख रहे हैं। हमने 500 हमारे डीलरों का नेटवर्क खड़ा किया है। अब हम सोलर जो डायरेक्ट कस्टमर को B2C में हम जो काम करने की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे कस्टमर्स को हम डायरेक्ट फोकस कर रहे हैं। विदाउट सब्सिडी के मार्केट को भी हम डेवलप कर रहे हैं। उसमें हमारे पास एक बहुत ही अच्छा हमने सोलर डेवलप किया है। 2 पैनल से चलने वाला पंप है, जो बिहार और यूपी में बहुत एग्रीकल्चर में सपोर्ट करेगा। जो मार्केट अभी तक डीजल से चलने वाला था, उसको भी हम ट्रैप कर रहे हैं, और वहाँ पे भी हम पहुँचना चाहेंगे, क्योंकि डीजल की कास्ट अभी इतनी ज़्यादा हुई कि उससे एग्रीकल्चर करना मुश्किल हो रहा है। तो हम सोलर पंप से उसको भी रिप्लेस करना चाहेंगे। हम हमारी आज की तारीख में कुसुम स्कीम में जो 30% हिस्सेदारी है, उसको भी हम मेंटेन करते हुए आगे हम इसको ले जाएंगे। और हमारा आने वाले साल में हमको ऐसा लगता है कि हम 1 लाख पंप अपने देश में सोलर पंप में इंस्टॉल कर पाएंगे। हमारी इन हाउस R&D, जिसका हमको भारत सरकार ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमको सर्टिफिकेट भी इशू किया है, जिसमें हमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, जिसमें हमने करीब 29 पैटेंट्स फाइल किए हैं, जिसमें एक फर्स्ट पैटेंट, क्योंकि पैटेंट की प्रक्रिया मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5-6 साल लगते हैं आजकल, जिसमें हम एक पैटेंट 2018 में हमने फाइल किया था। जो पैटेंट हमने अनाउंस भी किया, PSC की साइट पे भी लगाया है। ये पैटेंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही बड़ा मेरा ड्रीम था। मैंने अपनी टीम को इसमें फोकस करने के लिए भी कहा था कि जो सोलर पंप हम लगाते हैं, और वो जो पंप्स है वो ऑन ग्रिड पंप्स है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी अवेलेबल है, और सोलर पंप से एग्रीकल्चर करना है। तो बची हुई बिजली, बेसिकली ऑन ग्रिड पंप्स का उद्देश्य ये होता है कि सोलर पंप की या फार्मर्स को सिर्फ 200 दिन ही अपनी इरिगेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, बाकी बचे हुए समय में बिजली वो ग्रिड को एक्सपोर्ट कर सके। इसलिए ऑन ग्रिड पंप की कल्पना हिंदुस्तान में की गई, और इसीलिए कुसुम स्कीम में 17.5 लाख पंप को रिजर्व भी किया गया। लेकिन इससे भी ऊंचा हमने एक अपना सपना देखा था। वो सपना ये था कि हम अपने पंप को चलते हुए, डिमांड सप्लाई को देखते हुए, अगर हमारा फार्मर चाहे कि उसको उतने पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो अपने पंप की स्पीड को सेट कर सके और बची बिजली ग्रिड को सप्लाई कर सके। तो ये यूनिडायवर्शन से दोनों तरफ से बिजली लेना और सप्लाई करने के लिए ये पेटेंट हमको मिला है, और ये पेटेंट बहुत ही उम्दा टेक्निक की वजह से हमको मिला हुआ है। तो इसके लिए आने वाले समय में इस पेटेंट से हमको जो फायदा होगा, वो भी आने वाले समय में हम उसको देख रहे हैं आगे कि उसमें अच्छा काम करेंगे। इसके अलावा हमने एक और R&D में काम अभी भी किया है, जो एक हमारे देश में जो ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्कीम है, उसमें ये जरूरी है कि उस किसान के पास कोई बिजली कनेक्शन न हो, उसी को ऑफ ग्रिड में पंप दिए जाएंगे। तो ऑफ ग्रिड में जब हम पंप देते हैं, तो उसके फार्मर्स के दूसरे भी मशीन इक्विपमेंट्स होते हैं जो वो चलाना चाहेगा, जैसे कि आटा चक्की या फ्रीजर, या वो उसकी जो घास का, और जो उसको और भी कुछ चीज़ें लगती है चलाने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये सारे चल रहे थे, और इसके स्पेसिफिकेशन में मिनिस्ट्री ने पहले से दिए थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना था, मेरा फील्ड का इंफॉर्मेशन ऐसा था मेरे पास कि ये इसमें हम सिंगल फेस भी जोड़े, जिससे कि अधिकतर फार्मर्स के पास सिंगल फेस कनेक्शन होते हैं और सिंगल फेस इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। तो वो हमने अपने USPC जो हम कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं, उसमें हमने ऐड किया, और उसकी वजह से अब उसका बेनिफिट इतना बढ़िया हुआ कि अब आप हाथों सोलर पंप से खाना भी बना पाएंगे, चाय भी बना पाएंगे, और अपने EV को चार्ज भी कर पाएंगे, और अपने किसी इन्वर्टर को भी चार्ज कर पाएंगे, और बैटरी को भी चार्ज कर पाएंगे। मतलब अगर आपके पास एक सोलर पंप
यूएसपीसी कंट्रोलर के साथ है, जो एक अलग आइटम है मिनिस्ट्री की, वो करेंगे तो आपको बिजली की सारी समस्याओं से निजात पाएंगे। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसमें भी एक बहुत अच्छा काम होने वाला है और इसमें भी हम अच्छा काम करेंगे। अभी पिछले जो साल हमने जो कुसुम का जो था उसमें करीब 22,340 पंप्स हमने इंस्टॉल किए हैं और आने वाले समय में हम 1 लाख पंप इंस्टॉल करना चाहते हैं। टोटल मार्केट साइज मुझे ऐसा लगता है कि 6,000 करोड़ का होगा। हम मैं यहाँ यह करेक्ट करना चाहूँगा कि हमारा प्लान 1 लाख पंप्स का इंस्टॉलेशन करने का है, लेकिन हम जो हमने अभी इस साल ग्रो किया है तो 25 से 30% हम आने वाले समय में भी ग्रो करते रहेंगे। अभी फाइनेंशियल डिटेल के लिए मैं हमारे सीएफओ दिनेश पटेल को ये लाइन ट्रांसफर करता हूँ। ओवर टू दिनेश। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Moving on to the financial highlights, the company reported a consolidated revenue of rupees 385 crore in Q4 FY22, a 20% growth as compared to 320 crore in Q4 FY21. The EBITDA for the Q4 FY22 at rupees 36 crore declined by 27% as compared to 50 crore in Q4 FY21. The EBITDA margin for Q4 FY22 stood at 9.4% as against to 15% reported in Q4 FY21. A 619 BPS decline year-on-year basis on account of sharp rise in raw material cost and other operating costs. The profit after tax for Q4 FY22 is at rupees 22 crore as compared to rupees 31 crore in Q4 FY21. During FY22, consolidated revenue was at rupees 1179 crore, a 26% growth year-on-year basis as compared to 930 crore in FY21. This is the highest ever revenue for us since inception and a milestone as we cross the 1,000 crore mark in revenue. EBITDA at rupees 111 crore declined by 22% year-on-year basis as against 142 crore in FY21. EBITDA margin at 9.4% declined by 591 BPS year-on-year basis as compared to 15.3% in FY21. PAT for the year was at rupees 65 crore as compared to rupees 76 crore in FY21. This is all from my side. With this, we can now open the floor for question and answer. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Anyone who wishes to ask a question may press star and one. The first question is from the line of Mohit K. from DAM Capital Advisors. Please go ahead. Good afternoon, sir, and thank you for the opportunity. I have a few questions. I would start with the Kusum scheme. So have we started selling pumps under the Kusum scheme? And as per the PowerPoint sheet, there is a total market is of 3,17,000 pumps. So do you think that it will be executed completely in this year, FY23? हाँ मोहित, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये जो कुसुम 2 जो स्टार्ट हुआ है इसमें 3,70,000 पंप्स हैं और इसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसमें हम लोग 1 लाख पंप्स करेंगे। तो डेफिनेटली अब 17 से हम लोग चालू हुए, थोड़ा सा लेट इनिशियल स्टेज में लेट हुआ था। महाराष्ट्र में अभी LOI मिला है, राजस्थान में हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, हरियाणा कर रहे हैं और पंजाब कर रहे हैं और यूपी में अभी हम लोग इस महीने स्टार्ट करेंगे। और सर एक और सवाल था, ये 2024 में we have taken a 45% increase in the market size. So are we confident of retaining the 35% market share going ahead as well? Yes, definitely, बिल्कुल। Okay, and so how much are we targeting the revenues and EBITDA for next year from inverters? ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग 1 लाख पंप इंस्टॉल करेंगे, लेकिन आप जब रेवेन्यू की बात करेंगे तो यस, हम 25 से 30% ग्रो करेंगे 25 ईयर बेसिस, ईयर ऑन ईयर सर, अगले 2-3 साल के लिए। यस, ओके सर, इतने सर। और स्पेसिफिकली इन्वर्टर से सर?
हाँ, इन्वर्टर में भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इनिशियल स्टेज पे इन्वर्टर हमने कुछ 1000 के आसपास इंस्टॉल किए हैं। हम थोड़ा फीडबैक के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही ये फीडबैक आता है 1-1.5 महीने में हम उसका 1 शिफ्ट प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू। थैंक यू मोहित। Thank you. The next question is from the line of Neerav Asher from Latin Malhara Securities. Please go ahead. हाय सर, गुड आफ्टरनून Good सर। afternoon. मेरे 3-4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, आपने जो गाइडेंस दिया है 1 लाख पंप इंस्टॉल करने का, इज इट द ईपीसी और इट्स ईपीसी एंड ओईएम्स टुगेदर? नहीं, हमने कुछ स्ट्रेटजी चेंज की है। अभी हम ईपीसी कर रहे थे। सिर्फ ईपीसी करेंगे तो 1 लाख पंप। और सर आप प्राइस बता पाएंगे कि नॉर्मल 5 HP का प्राइस क्या है अभी? बिकॉज लास्ट कॉल में आपने बताया था कि गवर्नमेंट साइड से कुछ अप्रूवल मिला है 4 to 5% प्राइस हाइक। हाँ जी, जो प्राइस में आप 5 HP का जो प्राइस है उसका बहुत सारी स्टेट में अलग अलग प्राइस है। जैसे महाराष्ट्र में 2,35,000 रुपये है, दूसरी जगह 2,40,000 है, कहीं 2,20,000 है। तो एवरेज सर आप 2,40,000 पकड़ूं? हाँ, पकड़ सकते हैं। और सर तो वो 1 लाख पंप का अपना टारगेट है फॉर नेक्स्ट ईयर। राइट। और सर आपने बताया कुसुम में अपना 20% मार्केट शेयर, तो हु आर द अदर 30%। ओके, सो हु आर द अदर कॉम्पिटिटर्स? यस, सेकेंड अपन ये मान सकते हैं कि हम टाटा के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। टाटा पंप नहीं बनाते हैं, स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और वीएफडी भी बनाते हैं। तो टाटा सिर्फ सोलर पैनल बनाते हैं और वीएफडी, स्ट्रक्चर और पंप, मोटर ये सब लोग वो बाहर से परचेज करते हैं। और भी 1-2 लोग और एमएसएमई हैं जो लोग मिलके ही करेंगे। बराबर। तो सर आपने जो बताया कि जैसे टाटा सोलर पैनल बनाता है, तो अपना तो सोलर पैनल के लिए अदानी के साथ टाई अप है, राइट? राइट। और भी एक कंपनी है। और भी कंपनी तो है। सोलर पैनल प्राइसेस हैव गॉन अप इन लास्ट क्वार्टर। तो वही मार्जिन पे जो आप इफेक्ट देख रहे हो ना, अभी हमारा जो मार्जिन कम हुआ है बिकॉज ऑफ सारे रॉ मटेरियल में प्राइस बढ़े हैं। सोलर पैनल में भी बढ़े हैं, स्टील में भी बढ़े हैं, कॉपर में भी बढ़े हैं, जिंक में भी बढ़े हैं। उसी कारण से हमारी प्राइस में जो प्रॉफिट में जो हिट हुआ है उसी के कारण हुआ है। तो अभी एक्सपेक्टेड क्या है फॉर दिस क्वार्टर Q1 और फॉर फुल ईयर? क्या मार्जिन हो सकता है अपना? नहीं, मैंने आपको बताया था कि हम लोग 20 से 25% क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करेंगे। एक आध क्वार्टर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आगे हम उसी तरीके से ग्रो करेंगे। नहीं सर, मार्जिन का पूछो। मार्जिन कितना? अभी जैसे पूरे साल का अपना मार्जिन है 9.3%, तो क्या 11-12% तो हो सकता है कि वापस पूरा ना वो 15% जो पहले चल रहा था वैसे भी हो सकता है गोइंग अहेड? मतलब ये मान के चलिए आपकी 10-11% मार्जिन जो है हम लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिनेरियो थोड़ा ऐसा है ना युद्ध का। हम लोग पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि आने वाले समय में जिंक क्या रेट में मिलने वाला है, एसएस क्या रेट में मिलने वाला है, सोलर पैनल के क्या रेट होने वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अपने प्रोडक्ट में मेजोरिटी इज व्हाट इज द मेजोरिटी रॉ मटेरियल व्हिच इज यूज्ड इन? देखिए 50% आप ये मान के चलिए कि मेरे जो 2,50,000 रुपये का पंप है उसमें 40% सोलर पैनल की प्राइस है। ओके। 60% में मेरा आता है, स्ट्रक्चर आता है, पंप आता है, मोटर आता है, वीएफडी आती है, केबल्स आती है। उसमें मेजर कौन सा है अपने 60%? इसमें मेजर स्टेनलेस स्टील है और चीप है। वीएफडी के लिए चीप है, स्ट्रक्चर के लिए एमएस और जिंक, और पंप और मोटर के लिए कॉपर और सिलिकॉन शीट है, और पंप के लिए स्टेनलेस स्टील है। ओके ओके सर। सर एक और चीज़ पूछना था, अपना अफ्रीका एक्सपोर्ट का क्या सीन है? हाँ, अफ्रीका एक्सपोर्ट का सीन स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने जैसे पिछली कॉल में ही बताया था कि अगले क्वार्टर में हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम इस स्टेज पे हैं कि हम लोग अगले महीने उसकी सेल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंथ। आर वी एक्सपेक्टिंग बेटर मार्जिन इन दैट? हाँ, यस। तो ओवरऑल अपना मार्जिन एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और कोई कंट्रीज है वहाँ पे एक्सपोर्ट का? जैसे आप बोल रहे थे कि कोविड की वजह से यूएस भी नहीं कर पा रहे ट्रैक, बट नाउ एवरीथिंग हैज ओपनड अप, सो कैन वी फोकस ऑन यूएस एंड अदर मार्केट्स आल्सो? हाँ, अब हमारी पूरी सेल्स टीम पिछले महीने से टूर पे चालू। मैं भी अभी यूरोप जा रहा हूँ, तो अगले महीने से हम लोग सारे टूर पे हैं और अपनी कंट्रियों को डेवलप भी करेंगे और कस्टमर से भी मिलेंगे। Thank you very much. 2 सालों से बंद था। Thank you very much. Neerav, I'll request you to come back in the question queue for a follow-up question. The next question is
from the line of Nitin Dharmawat from Aurum Capital. Please go ahead. Yeah, thank you for the opportunity. सर आप जैसा बता रहे थे कि अपना R&D टीम बहुत स्ट्रांग है, तो अपना R&D का बजट कितना है सेल्स के परसेंटेज के टर्म्स में? R&D का बजट सेल्स के सामने हम लोग करीब ये मान के चलिए आपकी 1 से 1.5% हम लोग R&D में खर्च करते हैं टोटल। ओके। और हमारे जो मैं नंबर देख रहा हूँ उसमें हमारे रिसीवेबल नंबर भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो वो क्या लगता है आपको किस तरफ जाने वाले रिसीवेबल के नंबर? मतलब सेल्स से ज़्यादा तो रिसीवेबल ही बढ़ रहे हैं हमारे, और चूंकि हम गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं अभी कुसुम का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो रिसीवेबल के नंबर का क्या डायरेक्शन होगा? हाँ, हम लोग जो आप ये देखेंगे गवर्नमेंट में भी हम लोग पेमेंट अच्छे से ला पा रहे हैं। अगर आप दोनों क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो उसमें भी 90 डेज से 100 डेज के बीच में हमारी पेमेंट गवर्नमेंट की आ रही है, जो यही एक्सेप्टेड है कि यही ठीक है, इसी समय में हमारी आगे भी पेमेंट आती रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। तो रिसीवेबल में आपको बैड डेट होते हुए नहीं दिख रहे? नहीं, ऐसा गवर्नमेंट में कभी बैड डेट होता भी नहीं है, और वैसे हम लोग बड़ा ध्यान रख के काम करते हैं। देखिए अभी हमारे पास ऑफर है कि हम साउथ में जाके अपने आप को एस्टेब्लिश करें, लेकिन हमें मालूम है कि साउथ में स्टेट गवर्नमेंट ने बजट का प्लानिंग नहीं लिया है, तो हम वहाँ सप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम केरल में सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम आंध्र प्रदेश में नहीं कर रहे हैं, हम कर्नाटक में नहीं कर रहे हैं। और अपना टोटल डेट कितना है बुक्स पे अभी कंसोलिडेटेड? कंसोलिडेटेड डेट, एक मिनट दिनेश आपको इसका जवाब देंगे। सर अराउंड 100 करोड़। वर्किंग कैपिटल है, टर्म लोन तो करीब 10 करोड़ है, बाकी वर्किंग कैपिटल है। यस, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू नितिन। Thank you. The next question is from the line of Hardik Vyas from the Economics Times. Please go ahead. सर आपने बताया कि 40% जो अपना सेलिंग प्राइस 2.5 लाख का होता है उसमें से 40% इज द सोलर पैनल कॉस्ट, मतलब करीबन 1 लाख का सोलर पैनल का कॉस्ट अपने को पड़ता है। तो वो सोलर पैनल के प्राइसेस कितने बढ़े हैं? मतलब अभी अपने को 1,10,000 पे करना पड़ रहा है, 1,20,000 पे करना पड़ रहा है, या फिर 90,000 पे करना पड़ रहा है? मतलब कैसे प्राइसेस? अगर आप देखेंगे 6 महीने पहले 20 रुपये प्राइस थी सोलर पैनल की, आज 24.5 रुपये है। 24.5 20% के आसपास बढ़ चुकी है प्राइस। और यहीं पे प्राइस रहेगी और भी बढ़ने का मतलब अंदाजा है अपना? अंदाजा तो कम होने का है अब। अच्छा, अभी भी इसके बदले 24.5 रुपये दे रहे हैं हम लोग, वो हिसाब है अभी। ठीक है। और सर स्टील और इसी के कारण हार्दिक हमारा जो मार्जिन हिट हुआ है ना, इसी के कारण हुआ है। हाँ मैं समझता हूँ सर, स्टील और जिंक के प्राइसेस भी बढ़े हैं, तो जो दिसंबर क्वार्टर में अपना मार्जिन था या सितंबर क्वार्टर में था उससे तो कम ही आया है, तो अभी यहाँ से 10-11% पे काम करेंगे? आपने आगे एक जन को बताया कि यहीं पे काम करेंगे और बढ़ सकता है आगे जाके, या तो थोड़ा वो गाइडेंस मुझे समझ नहीं आया कि स्टील और जिंक के प्राइसेस कितने अफेक्ट करेंगे अभी आगे जाते हुए अगले साल में अपना? मतलब समझ रहा हूँ कि वॉर का सिचुएशन है और सब कुछ है, बट हाउ आर वी लुकिंग एट द रॉ मटेरियल प्राइसेस मूविंग फ्रॉम हियर? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब यहाँ से नीचे आना चालू होगा, और थोड़ा थोड़ा कुछ हुआ भी है। अगर आज आप देखेंगे जिंदल की एसएस प्राइस में तो कुछ 2.5 से 3% प्राइस नीचे आया है अभी इस महीने में। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में जो इसकी रियल प्राइस है स्टेनलेस स्टील की या जिंक की या कॉपर की या सोलर पैनल की, वो रियल एस्टेट प्राइस से तो अभी ये 30 से 40% ऊपर चल रहे हैं। तो ये अगर 10-15% भी अगले आने वाले 1-2 क्वार्टर में नीचे आता है तो हमारा मार्जिन डेफिनेटली इम्प्रूव होगा और अच्छे से इम्प्रूव होगा। ओके, वो समझता हूँ। और सर अपने को वी डोंट हैव दैट क्लॉज इन आर कुसुम के जहाँ पे हम लोग प्राइस इंक्रीज अगर करना पड़े टू मेंटेन आर मार्जिन, या फिर अपने को मार्जिन हिट होके ही काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? हमने मिनिस्ट्री में रिक्वेस्ट की और अगले टेंडर में मिनिस्ट्री ने प्रॉमिस भी किया है कि वो लोग प्राइस इंक्रीज वाला क्लास लेके आएंगे। तो अगला टेंडर कभी है? अभी तो 2.0 चल रहा है ना, तो अगला टेंडर तो अगले साल आएगा शायद। अगले साल आएगा, तब तक तो इसी पे चलना पड़ेगा। हाँ, हमने हमारे डोमेस्टिक की प्राइस थोड़ी इंक्रीज की है, हमने थोड़ी एक्सपोर्ट की प्राइस इंक्रीज की है। हम B2C मार्केट में भी जा रहे हैं, जहाँ पे हमको लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत अच्छा मार्केट क्रिएट करेंगे हम।
जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं हिंदुस्तान के, जो 2 पैनल वाला कंसेप्ट है, जिनका 1 हाथ पावर का पंप चाहिए, शाम को घर ले आएगा पंप वो किसान अपने साइकिल पे रख के, और सुबह अपने साइकिल पे रख के वो जाके अपना खेत को पानी देगा। ऐसे पंपों को अब हम बिहार में मार्केट करने जा रहे हैं। अगले महीने से वो B2C वाला कैंपेन हमारा चालू हो रहा है। अच्छा, तो एक्सपोर्ट में मार्जिन अपने कितने हैं यहाँ पे? तो वो ये तो ब्लेंडेड मार्जिन है ना 10-11%, तो अपने एक्सपोर्ट वाले मार्जिन थोड़े ज़्यादा होंगे। हाँ, एक्सपोर्ट में हम लोग अच्छे मार्जिन पे काम करते हैं। यूएसए में अच्छा मार्जिन हमारे को अवेलेबल है। हमारा 50% जो है एक्सपोर्ट का मिडिल ईस्ट से आता है, वहाँ पे भी हमारे पास मार्जिन ठीक है। वो नंबर तो नहीं मतलब पता है हम हाँ, नंबर तो यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अलग से, आपको चाहे तो मैं हमारी टीम को बोलूँगा, IR टीम को, तो वो आपको अलग से भेज देंगे। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा वो है कि आपने बताया कि EPC ही पे ही काम कर रहे हैं हम लोग, और 1 लाख EPC हम लोग टारगेट कर रहे हैं अगले साल में 22-23 में। तो OEM अभी हम लोग ज़रा भी नहीं बेच रहे हैं क्या? हाँ, अभी हम OEM स्ट्रेटेजिकली हमने डिसाइड किया कि हम OEM को नहीं दे रहे हैं अभी। अच्छा, लो मार्जिन है या फिर ज़्यादा कंपटीशन है सर, क्या सीन है? वो थोड़ा बिजनेस स्टाइल है, बिजनेस की स्टाइल है, उस पर थोड़ा सोच रहे हैं उस पर कैसे क्या आगे बढ़ रहा है। थोड़ा गोपनीय कोई डिसीजन रखना पड़ेंगे इस कॉल के अलावा भी। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू हार्दिक। Thank you. The next question is from the line of Forum Hakim from Equity Capital. Please go ahead. Hello sir, I have a couple of questions. Sir, last year हमने 1.5 लाख पंप्स का टेंडर था, उसमें से कुछ 80,000 ही इम्प्लीमेंट हुआ। तो सर ये साल आपको क्या कंफर्ट दे रहा है कि पूरा 3,17,000 पंप्स इंस्टॉल हो जाएंगे, कंसिडरिंग इतना स्लो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कुसुम स्कीम में? अब लास्ट ईयर क्या है, वो 3-5 HP के पंप ज़्यादा थे और उसमें मार्जिन भी नहीं था, और हम भी बहुत सी जगह नहीं कर पाए थे। अभी 7.5 HP और मतलब 10 HP और 5 HP जो है, ये इसमें हमारे पास यूपी में भी रेड कॉन्ट्रैक्ट है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, MP में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो हमको ऐसा लगता है कि हम अच्छे नंबर कर पाएंगे। पर गवर्नमेंट के साइड से अब इम्प्लीमेंटेशन स्लो रहा है ना सर, लास्ट ईयर भी। तो ये साल आप कॉन्फिडेंट हो कि कर देंगे? यस, लास्ट ईयर तो क्या इस ईयर में क्या हुआ, अगले 2 क्वार्टर तो कोर्ट में चले गए थे ना, उसके कारण सब लोग थोड़ा रुक गए थे। हाई कोर्ट में चले गया था मामला, इस कारण रुक गए थे। अब कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं। तो सर वो जो 1,50,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें से सिर्फ 80,000 ही इम्प्लीमेंट हुआ, तो बाकी पंप्स का क्या हुआ सर? वो तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, वो स्कीम में नंबर आगे गवर्नमेंट जो है वो ये मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि उनको अगले सालों में लेना है या उसको स्क्रैप करना है। तो अभी वो 3,17,000 में करेंगे। अगर 3,17,000 पंप उनके हो जाएंगे तो वो पिछले भी टेंडर की कुछ कर सकते हैं क्वांटिटी, वो उनके ऊपर एक बार ये नंबर अचीव तो हो। तो ये 3,17,000 में लास्ट ईयर का कुछ भी नहीं है? यस। ओके सर। और सर ये जो 3,17,000 का नंबर है, उसमें से अभी तक ये क्वार्टर में कितना इम्प्लीमेंट हुआ है? ये क्वार्टर में कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, ये करीब 9,800 पंप के आसपास हुआ है। एक मिनट है, इसका बताता हूँ मैं आपको। पंप्स हुए हैं क्वार्टर 4 में 9,000 और टोटल 9,000। 3,17,000 अब तक 9,000 इंस्टॉल हुए हैं। और उसमें से शक्ति पंप का कितना हुआ है सर? मैं आपको ये इस लास्ट क्वार्टर का बता रहा हूँ कि 9,000 पंप इंस्टॉल हुआ है, 9,300। टोटल कुछ 23,000 पंप इंस्टॉल हुए हैं उनके टोटल मिनिस्ट्री। वो मेरे पास डाटा कंप्लीट नहीं है, मैं अपना डाटा बता सकता हूँ आपको कि हमारे 9,302 हमारे हुए हैं, बाकी 30% का आसपास हमारा मार्केट शेयर है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा सर, तो आप बोल रहे हैं कि ये सर हम 1 लाख पंप्स का करेंगे, तो मैं 2 लाख का प्राइस पकड़ूं तो सर उधर ही हमारा 2,000 करोड़ का टॉप लाइन हो जाता है, विच इज मैं कह रहा हूँ कि आप 25 से 30% ग्रो करेंगे हर साल मिनिमम, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। तो सर ये एकदम कंजर्वेटिव गाइडेंस हो गया। राइट। ओके। और सर हमको सोलर पैनल का कुछ शॉर्टेज फील हो रहा है क्या? नहीं, वो उसमें
हिंदुस्तान की आत्मनिर्भर वाली पॉलिसी काम में आ रही है और हिंदुस्तान का DCR सेल ही चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया ही चाहिए, तो मिल रहा है, अभी अवेलेबल है। ओके ओके, मतलब अदानी और बाकी जो आपके सप्लायर्स हैं उनको कोई शॉर्टेज फेस नहीं हो रहा है? हाँ, बस रेट ही बढ़ा हुआ है। हाँ ओके ओके। तो सर हमारा इन्वेंट्री काफ़ी ऊपर चला गया है, तो ये फिनिश गुड का इन्वेंट्री है हमारे पास या ये रॉ मटेरियल सिक्योरिटी के लिए है? ये एक्चुअली फिनिश गुड के लिए थोड़ा सा पाइलअप किया है, जो अभी नेक्स्ट हमारे ऑर्डर्स हैं उसके लिए, और बाकी रॉ मटेरियल और WIP तो एज इट इज है, उसमें कुछ मेजर हाइक नहीं है। और थोड़ा सा जब रेट ऊपर नीचे जाते हैं तो हम भी जानबूझ के थोड़ा सा एक अलग सेफ्टी पाइन लेके चलते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि पूरे संसार में चिप को लेके इशू चल रहे हैं और सबको पता है, तो जो हमारी VFD है वो तो पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक है। जो VFD हमारी पहले 15 करोड़ के रॉ मटेरियल पे चल पाती थी, जिस पे हम 15 करोड़ के रॉ मटेरियल पर काम कर पाते थे मंथली, लेकिन उसके लिए अब हमको 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके वो जो उसके चिप हैं और जो IGBT हैं और जो बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उसका स्टॉक लेवल हमको बढ़ाना पड़ा, क्योंकि हमको टाइमली डिलीवरी करनी है। तो फिर जब घबराहट होती है तो हम लोग ज़्यादा स्टॉक करके रखना पड़ता है, उसकी वजह से भी आप थोड़ी बहुत इन्वेंट्री बढ़ी हुई देखते हैं। ओके ओके सर, तो ये जो 1 लाख पंप का हमारे पास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उतना हमारे पास इन्वेंट्री मतलब हम फंड कर पाएंगे ना? यस, डेफिनेटली कर पाएंगे। और उसके लिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लगेंगे वो सब रेडी है? ऑलरेडी हमारे जो टैंकर्स हैं उससे टाई अप है हमारा, ऑलरेडी उसकी व्यवस्था हो चुकी है। ओके सर। और सर आप प्लीज़ वॉल्यूम नंबर्स दे सकते हैं ये क्वार्टर के लिए और FY22 के लिए ब्रेकअप कुसुम, OEM और एक्सपोर्ट में? मैं आपको टोटल वॉल्यूम दे पाऊंगा। जो सोलर EPC में हमने जैसे इस क्वार्टर में 9,302 किए हैं, सोलर एग्री में कुछ 1,200 किए हैं, बाकी 5,000 कुछ डोमेस्टिक में किए हैं और एक्सपोर्ट में 20,000 किए हैं। ऐसा मैं आपको डिटेल और हमारे प्रेजेंटेशन में हमारी IR टीम को बोलूँगा तो वो आपको भेजेंगे। हाँ सर, आप नेक्स्ट टाइम से वो इंक्लूड कर देंगे तो भी हेल्प हो जाएगा। और सर जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा युगांडा का ऑर्डर है उसमें भी हमारा प्राइस, रॉ मटेरियल प्राइस ऊपर गया होगा, तो हमने वो प्राइस रिवीजन करके ही अभी हम वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट करेंगे? उसमें एक कंडीशन है, उसमें कोशिश जारी है हमारी कि उसको कैसे करना है। उसमें एक प्राइस इंक्रीज की कंडीशन है और उसके लिए हमने मिनिस्ट्री में ऑलरेडी अप्रोच किया हुआ और उसी के लिए लेट भी हुआ है, तो हमको लगता है कि उसमें हम प्राइस अच्छी ले पाएंगे। ओके, तो ये जो 250 करोड़ का ऑर्डर है वो कब तक इम्प्लीमेंट होगा? वो एक्चुअली प्रोजेक्ट है, उसको अब अगले महीने से हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। उसकी जो बैंक गारंटी से वो सब दे चुके हैं, बाकी प्रोजेक्ट लाइनअप है, अगले महीने से उस पर स्टार्ट करेंगे। आगे हो सकता है कि उसको वो 1 साल का प्रोजेक्ट है तो 6-8 महीने में उसको कोशिश करेंगे फिनिश करने की। ओके सर, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you very much. Participants, you may press star and 1 to ask a question. The next question is from the line of Jatin Kumar from Alpha Capital Advisors. Please go ahead. हेलो सर, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो ये जो लास्ट मैम पूछ रही थी इसी पे थोड़ा सा है कि हम बोल रहे हैं 1 लाख पंप करेंगे, प्राइस हो गया 2 लाख, तो 2,000 करोड़ यहीं से हो गया, प्लस हमारे पास डोमेस्टिक भी है, एक्सपोर्ट भी है, तो इतना कंजर्वेटिव गाइडेंस क्यों दे रहे हैं कि 20-25% ग्रोथ ही देगी? थोड़ा युद्ध का साल लगता है और कुछ अभी कुछ प्रॉमिस पिछले बार मेरे से कुछ गलतियां हुई थी जिसमें मैंने बताया था, फिर लोग उसको अदरवाइज लेते हैं। इसलिए मुझे मेरे सलाहकार लोगों ने सलाह दी है कि डोंट डिलीवर्ड नंबर, आप ठीक है पंप की बात कर सकते हो, पंप करो, लेकिन ये जो नंबर है आप इसको 25 से 30% ग्रो वाला करो तो थोड़ा कंफर्ट रहेगा हमारी टीम को। ऐसी सलाह मुझे दी गई है, तो इसलिए मैं उसी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ओके सर, और ये 20-25% ग्रोथ में हम क्या मान रहे हैं कि हम नॉन कुसुम के अलावा मतलब डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट से कितना
रेवेन्यू आ सकते हैं? सभी जगह हम 30% ग्रो करेंगे, 25 से 30% एक्सपोर्ट में भी हम ग्रो करेंगे, 25 से 30% हम डोमेस्टिक में भी करेंगे। और सोलर का तो मैंने आपको बताया नंबर। जी सर। तो सर ये जो कुसुम से 1 लाख पंप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये क्या हर क्वार्टर में इक्वली बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है या किसी क्वार्टर में किसी मंथ में बहुत ज़्यादा होते हैं? ये कैसे चलते हैं सर ये स्कीम? स्कीम ऐसे चलती है कि स्टेट अपने बजट का प्लान करता है, MNRE उनको क्वांटिटी सैंक्शन करती है और फिर वो जो है स्टेट नोडल एजेंसी पोर्टल पे अनाउंस करती है, फिर फार्मर डिसाइड करता है। इसकी एक पूरी साइकिल है और इसमें मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी सिचुएशन सही हो जाती है तो एक क्वार्टर में जो नंबर डिसाइड किए हैं वो अचीव किए जा सकते हैं और हो भी रहे हैं। आगे हमने देखा है कि वो भी हो रहे हैं। चूंकि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, सारे लोग इनिशियल स्टेज पे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में रेट तय किया गया है, टर्म्स एंड कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, उसको स्टेट गवर्नमेंट को हमारे यहाँ एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। तो वो सब चीज़ें अब ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि अब सब ठीक होते दिख रही है। सबने बजट प्लान किया है, महाराष्ट्र का बजट ऑलरेडी प्लान है, राजस्थान का 300 करोड़ का उसने किया है, महाराष्ट्र ने 500 करोड़ का किया है, पंजाब हरियाणा ने ऑलरेडी नाबार्ड का लोन ले रखा है, पंजाब के पास ऑलरेडी बजट है। तो सारे लोग अब प्लान कर रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि अब और स्पीड इसकी धीरे धीरे और बढ़नी चाहिए। मतलब सर स्पीड लास्ट क्वार्टर में जाके तेज होती है कि Q4 में जाके लोग वापस सब ले रहे हैं, या हर क्वार्टर में आती रहेगी स्पीड? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये हर क्वार्टर में आती रहेगी स्पीड, ऐसा मेरा मानना है कि अब सब सेट हो चुका है मामला। Sure, sir. Thank you and all the best, sir. Thank you. Thank you. Participants, you may press star and 1 to ask a question. The next question is from the line of Anurag Patil from Roha Asset Managers. Please go ahead. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर हमने ये PLI स्कीम के लिए अप्लाई किया था, तो उसका अभी क्या स्टेटस है? कौन सी स्कीम के लिए? PLI। यस, PLI, यस, गुड क्वेश्चन। PLI यस, हमने उसके लिए किया था। PLI ऑलरेडी हमारी रिक्वेस्ट को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसमें रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। ये शक्ति ग्रीन में जो हम EV पे काम करने वाले हैं, उस पर अब आने वाले क्वार्टर में हम लोग उसको और आगे बढ़ाएंगे। और उसी के लिए हमने कुछ थोड़ा डिविडेंड भी अभी जो है, लास्ट ईयर हमने डिविडेंड 8 रुपीज़ पर शेयर दिया था, अभी डिविडेंड हम 2 रुपये पर शेयर दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा इन्वेस्टमेंट हमको EV में करना है कैपिटल में। तो अब हम इन्वेस्टमेंट करके उसको भी EV को अब आगे स्पीड से बढ़ाएंगे। कितना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं? हम उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ प्लान कर रहे हैं अभी इनिशियल स्टेज पे। ओके, तो ये मतलब FY23 में 50 करोड़ का हो जाएगा पूरा? हो जाएगा, यस। तो थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और रेवेन्यू पोटेंशियल आगे। EV में मैं आपको बताना चाहूँगा कि EV में हमने अच्छा R&D करके पहले से ही हम 2-3 साल से उस पर सोच रहे थे, क्योंकि हमारा जो पावर इलेक्ट्रॉनिक का यूनिट पिछले 5 सालों से चल रहा है, उसमें कंट्रोलर पे काम हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। अभी हमने ऑटो रिक्शा के जो मोटर्स हैं वो हमने कुछ 4-5 हज़ार मोटर के आसपास मार्केट में सेल आउट किया है, और उसके कंट्रोलर भी सेल आउट किए हैं और मोटर्स भी सेल आउट किए हैं। अभी 2 व्हीलर्स भी हमने कुछ मोटर्स बनाई है और उसको टेस्टिंग स्टेज पे है। अगले क्वार्टर में उसको भी हम करीब 1000 के आसपास ले जाके 2 व्हीलर की मोटर्स जो है उनको, उनका कंट्रोलर और उनकी मोटर्स दोनों हम अगले क्वार्टर में हमारा प्रोग्राम है कि हम उसको 1000 नंबर्स टेस्टिंग के लिए मार्केट में उतारेंगे। तो ये 2 व्हीलर की मोटर्स हैं जो बैटरी से चलने वाली हैं, और 3 व्हीलर्स की जो मोटर्स हैं वो भी बैटरी से चलने वाली मोटर्स हैं। हम 4 व्हीलर की मोटर में R&D स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें भी आने वाले 1-1.5 साल में हमको ऐसा लगता है कि उसमें हम एक अच्छे नंबर पे काम अपने आप को पहुंचा पाएंगे। तो और हम एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो है फास्ट चार्जर, जो 60 मिनट्स में आपकी 75% बैटरी को चार्ज कर देगा, EV की बैटरी को चार्ज कर देगा। उसकी भी R&D हम 60-70% कंप्लीट कर चुके हैं, उस पर भी हम आगे काम करने जा रहे हैं। तो ये जो EV का काम है, जो ऑटोमोबाइल्स की मोटर्स हैं, जो 2 व्हीलर्स की मोटर्स हैं, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की मोटर्स हैं, इनके कंट्रोलर और इनकी मोटर और चार्जर पे हम लोग काम करेंगे। उसके लिए हमने एक शक्ति ग्रीन एक कंपनी स्टार्ट की है, उस पर हम लोग इस पे उसके लिए हमने इसको PLI में रजिस्टर किया।
सर ये सेगमेंट से मटेरियल ड्रिवन में मतलब FY24 और उसके आगे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। राइट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अनुराग। Thank you. The next question is from the line of Akshay Kothari from Envision Capital. Please go ahead. नमस्ते सर। मुझे ये जानना था कि आपके जो फॉरेन ऑपरेशंस हैं जो आपके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिख रहे हैं कि यूएस में है, यूएई में है, शंघाई, बांग्लादेश, तो ये इनके ऊपर आप कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे कि आगे जाके ये किस तरीके के लगेंगे? राइट। जैसे आप हमारी यूएस की कंपनी देख रहे हैं, तो यूएस की कंपनी में हम लोग बड़े दिनों से वहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे थे। बहुत, मेरे ख्याल से हमको 10 साल हो गए वहाँ पे, हम धीरे धीरे उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब वो बहुत अच्छी पोजीशन पे वो कंपनी आ चुकी है। उस कंपनी का काम है यूएसए में मार्केटिंग करना, और जो यूएसए में जो हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग का जो काम है वो वहाँ पे हमारी यूएसए की कंपनी करती है, और वो 100% होल्डेड बाय शक्ति से यूएसए की जो कंपनी है। दूसरी हमारी एक कंपनी दुबई की है जो मिडिल ईस्ट में उसको सर्व करती है हमारे कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस, और उनकी जो पोस्ट और प्री सर्विसेज है सेल्स की वो प्रोवाइड करती है। तो वो कंपनी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो 2 कंपनियां हमारी यूएसए की जो कंपनी है वो और दुबई की जो कंपनी है वो बहुत अच्छे से सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर रही है। हमको बांग्लादेश से भी कुछ इन्विटेशंस मिले थे कि वो भी हमारे साथ ईपीसी में काम करना चाहते हैं, और उन्होंने हमारी फैक्ट्री भी विजिट की थी, और उनके जो हायर ऑफिसर्स हैं, एम्बेसडर और बाकी लोग, वो फैक्ट्री में विजिट करके गए थे। तो उन लोगों ने हमको रिक्वेस्ट की थी कि आप वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके और वहाँ से आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी के थ्रू वहाँ पे आप ईपीसी प्रोजेक्ट ले सकते हो। तो ट्रायल रन हमने बांग्लादेश में किया है, बहुत अच्छे से सक्सेस हुआ है। हमको लगता है आने वाले समय में हमारी बांग्लादेश वाली कंपनी भी अच्छा काम करेगी। तो ये जो 3 कंपनियां हमारी फॉरेन में जो बहुत अच्छा काम कर रही है, एक कंपनी हमारी खुद की 100% होल्डेड कंपनी है जो स्ट्रक्चर बनाती है, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। अभी हमने एक ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर MNRE में प्रेजेंट किया है जो कि सन के साथ मूव करता है, और वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और करीब 30% सोलर पैनल की सेविंग उससे हो सकती है। पहले भी लोगों ने डेवलप किया था, लेकिन उसकी प्राइस 30% सोलर पैनल की प्राइस से ज़्यादा थी, इसलिए वो उसको मेरी भाषा में परवड़ता नहीं था या सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, इसके लिए वो नहीं चल पाया था। अभी हमने उसको रीडिज़ाइन करके उसमें बड़ा अच्छा काम करके और उसकी कास्ट को नीचे ला पाए, जिसकी वजह से जो सेविंग होगी वो 1 साल में ही उसका पूरा पेबैक आ जाएगा, जिससे मेरे कस्टमर की पॉकेट में ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर लगाने से कुछ पैसा बचेगा। ओके सर, थैंक यू अक्षय। The next question is from the line of Aditi from Niveshaay. Please go ahead. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Can you hear me, sir? Yeah, hi. Yes, good afternoon. So the structure which you were talking about, जो सन के साथ मूव करेगा, that you are talking about the China subsidiary? नहीं, ये हमने हमारी जो 100% होल्डेड शक्ति पंप्स की कंपनी है जो पीथमपुर में सिर्फ स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हमने उसको हमने बनाए इसलिए था कि वो हमारे शक्ति पंप के स्ट्रक्चर में हमारे ईपीसी प्रोजेक्ट में हम डिले कर रहे थे और टाइम पे डिलीवरी कस्टमर को नहीं दे पा रहे थे, इसलिए शक्ति पंप के बोर्ड ने तय किया था कि हम एक स्ट्रक्चर की कंपनी बनाते हैं, और हमने वहाँ एक अलग कंपनी बनाई और वो स्ट्रक्चर ही बनाती है। उस कंपनी ने ये इनोवेशन करके R&D करके ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर पीथमपुर में ही बनाया है। ओके सर। एंड सर, आपने चाइना वाली कंपनी का सब्सिडी का आपने कुछ अपडेट? चाइना वाली कंपनी का अपडेट ऐसा है कि वहाँ हम अभी अब कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हमने चाइना की सब्सिडी इसलिए स्टार्ट की थी कि कुछ चीज़ें हैं जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, जैसे मैग्नेट है और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमको कहीं और से नहीं मिल पा रही थी, तो उसको हमने कुछ कंपोनेंट्स थे हमारे, इसके लिए वो कंपनी स्टार्ट की थी। अभी तो उसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं है पिछले 6 महीने से। ओके सर। एंड सर, अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर सोलर पंप कितना है? हम लोग 35% कैपेसिटी पे अभी काम कर रहे हैं, 35 से 37। सर, एनी रीजन फॉर दिस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कि हम टारगेट कर रहे हैं इससे ज़्यादा करने का? अब कर रहे हैं हम। अभी जो हमने नंबर्स अभी किए हैं
उसकी कैपेसिटी मैंने आपको बताई है। आगे हम लोग 1 लाख पंप करेंगे तो यस डेफिनेटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा 50 से 60% तो पहुंच ही जाएगा। ओके। एंड सर एज यू हैव कवर्ड रिगार्डिंग द केपेक्स थिंग, मेरे क्वेश्चंस उस पे भी थे। तो अपन करेंटली ये जो ईवी प्लांट है अपना, उसमें केपेक्स ला रहे हैं? अभी फिलहाल तो नहीं ला रहे हैं इसमें कुछ। ओके सर, गॉट इट। हाँ सॉरी, कैपेक्स प्लान जो है, मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया था। कैपेक्स प्लान में हम लोग अपनी इक्विटी डाल पा रहे हैं। सॉरी सर? कैपेक्स प्लान में हम हमारी इक्विटी डालेंगे, शक्ति पंप्स की इक्विटी उसमें डालनी है हम। एक मिनट दिनेश जवाब दे रहे हैं। उसके लिए जो इस साल का प्लान है वो करीब 50 करोड़ का है, जिसमें उसका R&D प्लस अदर एक्सपेंसेस सभी को कवर करते हुए, तो इस साल का जो हमने बजट लिया वो करीब 50 करोड़ का इक्विटी इन्वेस्टमेंट का लिया है, जिसके सर ने आपको अपडेट भी किया है कि डिविडेंड में भी थोड़ा सा हमने शॉर्ट किया है, तो वो हमको यहाँ पे एक सपोर्ट करेगा, ऐसा हमारा मानना है। ओके सर, तो गोइंग फॉरवर्ड अपने पास अभी ये एक केपेक्स प्लान है जिसमें वी आर इंट्रोड्यूसिंग कंट्रोलर, मोटर एंड चार्जर। या और उसके अलावा रूटीन कैपेक्स जो ऑलरेडी कंपनी में होता है वो आपको पता है 15 से 20 करोड़ के आसपास। राइट, करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर। Thank you. Thank you. Participants, you may press star and 1 to ask a question. The next question is from the line of M.S. Rajasekhar, individual investor. Please go ahead. Sir, good afternoon. Good afternoon. हमारा जो कंपनी है, यू आर बेसिकली ए सोलर पंप कंपनी, एंड उसमें देखा जाए तो यू आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट स्कीम, कुसुम स्कीम। बट 2-3 साल से कुसुम स्कीम अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी वजह से हमारा कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज, आप कुसुम स्कीम या गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, आई थिंक यू शुड नॉट डिपेंड ऑन दैट, यू शुड डिपेंड ऑन OEMs and other aftermarket or other installations. Because Kusum scheme, अगर if you depend on the government scheme, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है। सो उसके बारे में आपका विचार क्या है? हाउ विल यू कम आउट ऑफ कुसुम स्कीम? कुसुम स्कीम आ गया तो अच्छा है, नहीं आ गया तो भी हमारा कंपनी अच्छा चलना चाहिए, उसके बारे में आपका विचार क्या है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली क्या है कि हमने जो सोलर पंप्स बनाए हैं, मैंने आपको अभी भी इसके आगे वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि हम B2C पे काम कर रहे हैं। जो बिहार का जो एक इलाका है, जिसमें मैं आपको फिर से बताता हूँ, B2C से मतलब है बिहार का जो छोटा फार्मर है जिसके पास सिर्फ 2 या 3 एकड़ जमीन है और वो अपने एरिगेशन करना चाहता है, तो वो 2 पैनल अपनी साइकिल पे और पंप रख के अपना एरिगेशन कर सकता है। वो घर पे पंप को ले जा सकता है, 2 पैनल को ला के ले जा सकता है और अपने एरिगेशन भी कर सकता है। वो प्रोडक्ट हमने अभी डेवलप किया है रिसेंटली। तो हम B2C पे जा रहे हैं। हम B2C पे उस मार्केट को भी कवर करने के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है। अगले महीने से हम उसको भी कवर कर रहे हैं, जो डीजल मार्केट है, जो मेरे कस्टमर जो हैं जो ऑलरेडी डीजल पे अभी फार्मिंग कर रहे हैं, उनको भी हम फोकस कर रहे हैं। और तीसरा ये कि अब धीरे धीरे हमारे देश में सोलर का जो रिप्लेसमेंट मार्केट भी एक तैयार हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि 1.5 लाख पंप तो मेरे ही है और मार्केट में करीब 5 लाख के आसपास पंप पिछले 8 सालों में सोलर के लोगों ने पहले लगाए हैं। अब उसका रिप्लेसमेंट मार्केट भी आ रहा है। हम धीरे धीरे हमारे नेटवर्क से, हमारा जो डीलर नेटवर्क है उस नेटवर्क से हमारे सोलर पैनल को भी, सोलर पंप को भी हम डायरेक्टली उस पर काम कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो हम बैट सेल कर रहे हैं सोलर का, तो वो इस साल में करीब 60 करोड़ का रहा है, जो लास्ट ईयर 33 करोड़ का था। तो एक अच्छा ग्रोथ हमको यहाँ पे दिखता है और मार्केट में एक्सेप्टेंस भी है उस चीज़ का। और आपका वरी बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ आपके वरी से कि कुसुम कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, वो अलग थोड़ा है। लेकिन लोकसभा ने 40 लाख पंप सेंक्शन करके दिए हैं और इसमें अगर भारत सरकार का फायदा ये है कि उसको तार खंबा ट्रांसफार्मर में 1 लाख रुपए पर पंप पर किसान के हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट का फायदा ये है कि उसको 1 लाख रुपए हर साल का डिस्काउंट का लॉस होगा। अगर वो फार्मर सोलर पंप लगा लेगा तो दोनों को 1-1 लाख रुपए 5-6 फीट के बचेंगे। तो फार्मर्स को भी फायदा है, स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फायदा है और आपको और मेरे को भी है, क्योंकि हम पर्यावरण को भी कुछ ग्रीन एनर्जी के लिए हेल्प कर पाएंगे। नो आपका बिल्कुल सही है, ये सबके लिए फायदा है, परंतु इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है ना, वही तकलीफ हो रहा है ना।
Actually, हम लोग कुसुम को है ना पायलट प्रोजेक्ट मान के चल रहे हैं कि हमको जो उस मार्केट में जाके फार्मर्स को ये दिखाना है कि इससे फार्मिंग होती है, ये प्रूव करके दिखाना है कि हाँ बॉस ये काम चलता है, इससे पैसा बनता है। तो हम फार्मर को ये बता पा रहे हैं आज जाके कि देखिए ये पंप चल रहा है, और जो रिप्लेसमेंट मार्केट है उसको भी एड्रेस कर रहे हैं, जो नया मार्केट है उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। और इसमें हमारा ऐसा मानना है कि जब तक हिंदुस्तान में 4 करोड़ फार्मर्स को सोलर पंप की जरूरत है, वो फार्मर में से हम थोड़ा बहुत भी सही तरीके से सही जगह एड्रेस कर पाए तो उसको हम अच्छे से अपनी कंपनी को और अच्छे स्टेज पे बिना कुसुम के भी देख रहे हैं। इसलिए आपका जो मार्केटिंग टीम है उसको थोड़ा स्ट्रेंथन कर रहे हैं क्या, बढ़ा रहे क्या? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मार्केटिंग की टीम को एक अलग टीम हमने अलग अलग बनाई है। हमारी सोलर की टीम अलग है, ईपीएस की टीम अलग है, हमारी गवर्नमेंट की टीम अलग है, एग्री की टीम अलग है, और अभी ये जो बिहार में हम B2B कर रहे हैं उसके लिए एक अलग टीम हमने बनाई है। आई थिंक 2-3 साल में यू शुड डिपेंड ऑन द अदर मार्केट अदर देन कुसुम। 2-3 साल में वैसा होना चाहिए। यस, बिल्कुल यही विजन है हमारा, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच सर, वी आर विथ यू, डोंट वरी। ओके, थैंक यू। Thank you very much. Ladies and gentlemen, due to time constraint, that will be the last question for today. And now hand the conference over to Mr. Dinesh Patidar for closing comments. मैं आज कॉल में शामिल होने वाले सभी मेरे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि मैं आपके प्रश्नों का अच्छे तरीके से और मेरी टीम अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाई है। और इस कॉल में जो प्रश्न आपने पूछे हैं उसमें से कुछ आपको ऐसा लगता है कि जिनका उत्तर हम नहीं दे पाए हैं, इसके लिए आप सीधे हमारी अर्न्स्ट एंड यंग टीम और हमारी IR टीम से भी जुड़ सकते हैं, और उनसे भी आप जो भी डिटेल आपको चाहिए, हम प्रेजेंटेशन तो आपको भेज ही चुके हैं, और भी जो कोई डिटेल आप चाहते हैं हम जरूर भेजेंगे, हमारी टीम आपको जरूर भेजेगी। आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much. On behalf of Shakti Pumps India Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us. You may now disconnect your lines. Thank you.